Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is a Hindu and Indian Express. So I'll cover the most important news of the day. Additionally, I'll be supplementing the news with additional information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started. So these are the list of the topic for the day. Today is 13th of December. The first is INCOS IU launched Digital Ocean Initiative. The second topic is cohort study on the mutated COVID-19 virus, which was recently being found in the UK. The third important topic is increase in salary and retirement age in Telangana. And the fourth topic is kolar leaf nosed bat. This is the new variety of bat which was being found. And the last topic is climate policy needs a new idea. So this is an editorial reported in the today's newspaper. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday questions. So without any further ado, let's get started with the topic. So the first topic is INCOIS launch Digital Ocean. The news has been reported in the Hindu. And talking about the relevance of this kind of news, this is very much important for your general studies paper 3. GS paper 3 में काफ़ी ज़्यादा अहम है. साथ के साथ this will also help you in prelims examination and general studies paper 2. Any initiatives that is being launched become very relevant for the prelims examination, right? Now let's see what are the details that is coming from this news. So the Union Minister of Science and Technology has recently launched the Digital Ocean platform that is known as Indian National Center for Oceanic Information Services. It's called INCOS. राइट तो डिजिटल ओशन जो है जिस तरह से गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म को आगे प्रमोट करनी चाह रही है सो दैट सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग इनकैप्सुलेटेड इन द डिजिटल ओशन इनिशिएटिव्स. सो इस सर्विस के बेनिफिट क्या होगी? दिस सर्विस विल प्रोवाइड अ वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल डेटा रिलेटेड नीड्स, wide range of users including the research institutions, operational agencies या कोई strategic users हो, academic community हो या फिर maritime universities and for the public. इन सारे लोगों को मदद मिलेगा इस तरह के डेटा ओशन और डेटा सर्विसेज के थ्रू, राइट? तो एक वन स्टेप सॉल्यूशन बनाई जा रही है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहां पे सारे लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड की जा सके. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म फॉर द ओशन डेटा मैनेजमेंट, एक प्लेटफॉर्म होगी जहां पे ओशन डेटा को मैनेज किया जाएगा. सो डिजिटल ओशन इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म इन द ओशन डेटा मैनेजमेंट दैट हैज सेट एप्लीकेशन दैट इज प्रेजेंट इन द हेट्रोजेनस ओशनोग्राफिक डेटा विद जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी. अभी से पहले डेटा ओशन से पहले होता क्या था, बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन थे वो बाइफर्केटेड थे, दे वर नॉट इन द सिंगल प्लेटफॉर्म, राइट? नाउ विथ दिस प्लेटफॉर्म they would have a comprehensive data management in a single center that would be no more heterogeneous organographic data का मतलब है कि अलग अलग डेटा जब आते हैं so that can be centered at one place, one database would be maintained for geospatial technology. तो ये दोनों चीजों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा. Now it is expected to bring sea changes in how oceanographic data are served for better understanding of the ocean surrounding around us. तो ओशन की सराउंडिंग को समझने में किस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर की जा सकती है, उसके तरफ सरकार ने एक डिजिटल ओशन का इनिशिएटिव लिया है. Now it will also play a central role in sustainable management of our ocean and explaining the Blue Economy Initiative, because you have already seen the Blue Economy Initiative, also known as BEI. So Blue Economy Initiative जो थी वो गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इसके लिए पिच किया था एंड दिस वाज अ सक्सेसफुल मूवमेंट बाय द गवर्नमेंट, राइट? एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव थी जिसकी सक्सेस रेट काफी हाई रही है. सो इन दैट कंटेक्स्ट ऑल्सो दिस वुड बी एक्सपैंडिंग द बेस ऑफ ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स. Now coming to the benefits of these initiatives, what would be the sole benefit? So it will facilitate an online interactive web-based environment of the data integration, right? और जो data integration होगी that will also be provided in 3D and 4D data visualizations, right? So the technology is increasing. We have 5D, 7D, 8D even in China. So gradually India would be moving up to the another level of dimensions. बात करें अगर डेटा एनालिसिस की, दिस विल हेल्प टू एसेस द इवोल्यूशन ऑफ ओशनोग्राफिक फीचर्स ऑब्टेन फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेस लाइक मॉनिटरिंग डिवाइसेस, रिमोट सेंसिंग एंड मॉडल डेटा. तो जो अलग अलग तरह से जो डेटा हेट्रोजेनस डेटा आएंगे उनको इंटीग्रेट करके एक जगह पे डेटा को रखा जाएगा सो दैट दे कैन हेल्प फॉर द फर्दर एनालिसिस ऑफ द डेटा. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ दिस डिजिटल ओशन इनिशिएटिव.
Now talking about the ocean information and the advisory services, तो इनक्वाइस की अगर बात करें तो दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू द स्टेक होल्डर इन द कंट्री. किन किन लोगों को इनक्वाइस अपनी सर्विसेज देती है, ये भी प्रीलिम्स में अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दे कैन आस्क यू सेपरेट क्वेश्चन कि कौन कौन से लोग हैं जो ऑथोराइज्ड है इस तरह की सर्विस अवेल करने के लिए. सो इन दैट देयर आर लाइक नो द थिंग दैट वुड बी प्रोवाइडेड आर पोटेंशियली फिशिंग जोन एडवाइजरीज, उसके अलावा ओशन स्टेट फोरकास्ट, हाई वेव अलर्ट्स, tsunami early warning and storm surge and oil spill advisory among the other. That is state of art technology would be used to give the real time information. जो exact information होगी, real time information होगी, वो advanced technology, state of art by mean advanced technology से सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी. And this is for the oceanographic and marine meteorological data. सो इंडिया ओवरऑल अपने डेटा कलेक्शन को लेकर के इसमें बहुत हद तक दिस कैन बी अ वेरी पॉसिबल क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो कि इंडिया की जो डेटा साइंस है या फिर जो इंडिया की जो मैरीटाइम या मेट्रोलॉजिकल डेटाज हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं. दिस कैन बी अ वेरी पॉसिबल क्वेश्चन इन योर मेंस एग्जामिनेशन. सो मेक श्योर यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट एंड द रैशनल बिहाइंड इट. Now coming to the other news, that is cohort study on the new mutated COVID-19 virus. So there was a study which was being conducted to actually know what is the efficacy and how dangerous is the new COVID-19 mutation virus, right? So the relevant of this topic would be in General Studies paper 3. Now, according to the preliminary result of the cohort study, that was no significant livelihood was found. और बात करें अगर कोविड-19 केसेस में तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखी गई है. आज के न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये 96 केसेस रिपोर्टेड है फ्रेश. बट एफिकेसी की बात करें कितनी ज़्यादा वो और इफेक्टिव हो सकती है या कितनी ज़्यादा डिक्रीमेंटल हो सकती है उसके बारे में स्टडी से ये पता चला है कि दैट इज़ मोर और लेस डेंजरस टू दैट एक्चुअल कोविड-19 वायरस जो पहले आई थी, राइट? तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. दिस इज व्हाट द कोहर्ट स्टडी हैज़ फाउंड. तो जो अभी वैक्सीन बन रही है इंडिया में, चाहे वो इंडिजिनस हो या फिर जो बाहर के वैक्सीन बने हैं, तो इट कैन बी सेड कि ये वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है नए कोविड-19 की म्यूटेशंस पे भी. Now talking about the matched cohort study, this was the actual study that was being conducted. तो अगर केस फर्टिलिटी की बात की जाए, दिस वॉज काउज्ड बाय द न्यू वेरिएंट एंड परफॉर्म्ड यूजिंग द जो मैच्ड कोहॉर्ट स्टडी होती है. तो यहाँ पे 1769 जीनोम को ली गई थी, सीक्वेंस किया गया था. उसके बाद ये मैच स्टडी में पाया गया कि जो डिस्टिंक्टली डिफरेंटेबल वेरिएंट थे वो बहुत ज़्यादा पुराने वाले कोविड-19 से एफिकेसी रेट में या फिर अगर बात करें जिस तरह से वो डिक्रीमेंटल हो सकती है या उनकी जो लोगों की जो मोर्टेलिटी रेट में है बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है. सो इट मीन्स कि वो वायरस सेम पैरामीटर्स पे काम करी, बट जो स्पाइक प्रोटीन का जो अदर लेवल है वो मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा. तो चेंजेस जो है वो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में हो रहे हैं. नाउ द मीडियन एज ग्रुप की अगर बात करें तो जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे एज ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रही थी म्यूटेशन वाली नई वायरस के लिए, दैट वाज 36 to 35 ईयर. And this was the wild type of the cases, right? So these were the some two important age group which was mostly influenced by this new COVID-19 mutated virus. Now coming to the other part, that is over 51% of the both variant cases were wild type operator and were female. तो जितने लोग पाए गए उसमें maximum जो लोग थे वो female थी compared to the male. So this was being concluded by the cohort study and they have concluded कि male के अपेक्षा जो female की रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. Now the study also found कि that 12 of 1340, that is अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.89% were affected with the new variant and they died within 28 years. So that actual was the cases with the COVID-19 also, but यहाँ पे अगर आप उसकी पुराने वाले से एफिकेसी देखना चाहोगे तो परसेंटेज में 0.89%. Now, scientists have also studied whether the new variant causes increase in the reinfection rates, but इस तरह से भी कुछ डेटा हमारे पास है नहीं. Neither the scientists have the data कि क्या वो और ज़्यादा effective है पुराने वाले वायरस से या नहीं है. So it will take another studies to conclude and overcome what is the problem, right? Now, this is what a diagram I wanted to show you. This is the SARS-CoV-19 coronavirus. You can see these are the spike protein. This is known as a spike protein. And this is a D614G mutation that has actually occurred in the new virus.
and this is the affected area of the mutation. You can see this is the effective area, and these are the spike protein, right? These are the spike protein here. Now one coronavirus mutation has become dominant, जहाँ पे spike used by the virus to attach the human cell. So you can see these are the changes that has been seen in the chain of 3 amino acids that has improved its effectiveness. So this is the exact diagram. You can see this is the diagram, और यहाँ पे इसकी एक zoom करके इमेज बनाई गई है कि किस तरह से म्यूटेट करके 3 amino acid की चेन बना रही है. So this diagram is very important for you to understand. ये इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो म्यूटेशन है उसमें अमाइनो एसिड कैसे ऐड हो रही है, राइट. नाउ कमिंग टू द अदर न्यूज, दैट इज इंक्रीज इन द सैलरी एंड रिटायरमेंट एज इन तेलंगाना. तो जो तेलंगाना गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं टू मेक द पीपल कमिंग फ्रॉम पोस्ट रिकवरी ऑफ द कोविड-19 और अपने गवर्नमेंट को भी कैसे रिवाइव किया जाए उसके लिए. तो इस तरह के जो न्यूज़ हैं वो आपके केस स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज पेपर 4 में. And at the same time, if you're appearing for any state pieces examination, these type of news become very relevant. They cannot ask you in prelims examination. Prelims में आपसे यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, but means में case study के तौर पे आप इसको use कर सकते हैं. Now, in a recent decision by Telangana government, they have decided to enhance the salaries. The government has also proposed कि जो retirement age है सारे categories में state government की employees की, उसको बढ़ाया जाएगा, उसको भरा जाएगा. जो भी वैकेंसीज रही हैं उनको भी भरा जाएगा. साथ के साथ सैलरी और रिटायरमेंट एज उनको इंक्रीज की जाएगी. देयर वुड बी हाइक इन सैलरी एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिटायरमेंट की जो एज है उसको बढ़ाया जाएगा, राइट. नाउ बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे इस डिसीजन के. द सैलरी हाइक विल इम्प्लाई टू ऑलमोस्ट 9.3 लाख एम्प्लॉइज. जो पूरे तेलंगाना सरकार की जितने एम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, उनमें 9.37 लाख बेनिफिट होंगे इससे, बिकॉज दिस वुड बी ओनली इम्प्लीमेंटेड इन तेलंगाना गवर्नमेंट. एंड एज पर द सीएमओ, जो चीफ मिनिस्टर की जो ऑफिस है, हाइक विल इम्प्लाई टू द रेगुलर स्टाफ, जो रेगुलर स्टाफ वहाँ पे एम्प्लॉयड है. साथ के साथ ग्रांट इन एड, वर्क चार्ट, डेली वेजेस, फुल टाइम कंटिजेंट, पार्ट टाइम कंटिजेंट, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है, इवन जो सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन द रूरल पॉवर्टी में काम कर रहे हैं, जो होम गार्ड्स होंगे, आंगनवाड़ी के वर्कर हैं, आशा के वर्कर हैं, विद्या वॉलंटियर्स हैं, और जो पेंशनर्स होंगे, इन सारे लोगों की इसकी बेनिफिट दी जाएगी. सो दे हैव नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल पीपल और ओनली फॉर द ब्यूरोक्रेट. दिस बेनिफिट वुड बी प्रोवाइडेड टू एंटायर हायरार्की. So ये गवर्नमेंट ने बॉटम अप अप्रोच दिखाया है. दे आर वर्किंग ऑन द बॉटम अप अप्रोच एंड द एंटायर पीपल वुड बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिशियरीज दैट वुड बी कमिंग इन लाइन ऑफ दिस. Now talking about the 3-member committee, तो सीएमओ जो चीफ मिनिस्टर की जो ऑफिस है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ये कहा है कि यू शुड बी कमिंग विद द 3-member कमेटी, और जो उनकी रिकमेंडेशंस होगी पे रिविजन्स को लेकर के या फिर पर्पस फॉर फिक्सिंग द क्वांटम हाइक और एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सर्विसेज, उसके बाद सारी चीजें अलाइन होगी. बट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है. इवन द लो पे वर्कर इन द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन विल गेट अ हायर सैलरीज. जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में काम करते थे उन लोगों की भी सैलरी हाइक की गई है. इफ नीडेड, द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द आरटीसी वुड बी ब्रोन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. क्योंकि आरटीसी कई बार यूनियन के साथ मिलकर भी काम करती है कई स्टेट्स में, तेलंगाना में भी वैसी है. सो अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उनको कुछ एड दे सकती है अपने तरफ से. सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिवाइव द कंप्लीट स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी. और ये इनिशिएटिव दूसरे स्टेट्स के लिए काफी ज्यादा एग्जाम्पल सेटर बन सकती है. Now coming to the other news, that is कोलकर लीफ नोज्ड बैट. ये बहुत ही कम पाई जाती है. इसके कंजर्वेशन प्लान को लेकर के इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्टेड है. So this become very important for your general studies paper 3 in the environment section, and at the same time it will be very relevant for the prelims examination as well. Prelims में आप इस तरह के सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी से. Now the Bat Conservation Society, उन्होंने ड्राफ्ट किया एक प्लान टू सेव द बैट. उस बैट की जो कैटेगरी है, जो स्पीसीज है, उसका नाम है नोज्ड बैट, राइट. दिस इज फाउंड इन द कोलर कैफ. और जो सोसाइटी है, खास करके जो बैट कंजर्वेशन सोसाइटी है, दैट हैज बिकम इंटरेस्टेड विद द ड्राइंग ऑफ कंजर्वेशन प्लान एंड हैड आल्सो बीन अवॉर्डेड अ ग्रांट टू कंडक्ट द फर्दर रिसर्च इन द स्पीसीज ऑफ द बैट. बिकॉज इंडिया में अगर आप देखेंगे तो स्पीसीज बैट की, खास करके जो स्पीसीज है, उन पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया गया अभी तक. और अगर बात करें कोलार लीफ नोज्ड बैट की, सो दिन द रिसर्च पेपर इट वाज ओनली फाउंड कि एक केव में सिर्फ कोलार पाई जाती है, एंड दैट इज ओनली इन द बैंगलोर और कर्नाटका रीजन्स.
सो ये स्टिग्मा भी है कि जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ी है एंड दैट वाज द रीजन वाज बैट, अभी तक इसके बारे में एक्चुअल पुष्टि नहीं की गई है, कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसी अगर फेक कोविड स्प्रेड हुई तो इनके जो पॉपुलेशन अभी कम है वो पूरी तरह से और खत्म हो सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड हैव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू बैट, एंड इफ दे आर एक्चुअली द कैरियर ऑफ द कोविड-19 वायरस तो उसमें अलग अलग तरह के प्रजाति भी हो सकते हैं. फॉर इंडिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इस तरह के नोस्टेड बैट जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं या फिर इंडिया के कुछ इलाके कर्नाटक के रीजन में पाए जाते हैं, इट शुड बी वेल कंजर्व्ड. Now coming to the kolar leaf nosed bat, kolar leaf nosed bat is exclusive to Karnataka. Until several years ago, kolar leaf nosed bat was found in only 2 caves in the village in Hanumali in the Kolar district of Karnataka. Right? So Karnataka is the region where they are mostly found. And bats are one of the least studied animal in the country with 130 species in India. जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, बैट पे रिसर्च इंडिया में काफ़ी कम है. इनके वैरायटी स्पीसीज की बात करें, they are limited to 130. And bats are absolutely vital for ecology as they are pollinator and main diet for the nectars, right? So ecological benefits अगर आपसे पूछे जाए prelims में तो आप इस तरह के points को वहाँ पे you can mark the questions or you can eliminate the answers. Now according to the recent estimate there are just 115 kolar loaf-nosed bat that is found in the caves. They are mostly there in the cave. तो उनकी population जो कर्नाटका region में that is confined only to 150. नाउ स्टडी बाय द ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट किया था. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग विद द बैट की स्टडी को लेकर के, जहाँ दे हैव कॉल्ड दैट एक्सटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट वुड बी कमिंग इन वेरी सून ईयर्स. और जिस तरह से उनकी नंबर्स डिक्रीज हो रही है, सो वी कैन हैव द एक्सटेंशन कैटेगरी ऑफ द बैट. और गवर्नमेंट ने इमीडिएटली नोटिफाई किया कि जो 30 एकर्स ऑफ एरिया है उस कैब में, उसको प्रोटेक्ट किया जाए टू protect this bat variety or bat species. Now they are very adaptable creature. They are therefore often found in near human habitation और urban settlement में भी आप देखे होंगे कई जगह पे you can find the bats, right? तो which is making it more vulnerable. तो इसके लिए प्रोटेक्टेड एरिया बहुत ज़रूरी है. और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो एक कोई नेशनल प्लान भी बना सकती है सो दैट वी कैन कंजर्व इट. बट स्टिल जैसा मैंने आपको बताया कोविड-19 को लेकर के जो फॉल्स रूमर्स थे कि बैट वाज द ओरिजिनल कैरियर, सो वी एक्चुअली डू नॉट नो कि अगर ये है या नहीं. लेकिन उसके जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेज फूड चेन में या फूड वेब में, वो काफ़ी हाई हो सकते हैं. Now coming to the last topic, that is climate policy needs a new idea. This is an editorial reported in the Hindu, and these type of news is very much important for your general studies paper 3. और international treaties वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पे ये general studies के paper 2 में भी काफ़ी अहम होगी. Now in the upcoming years of 2021, will call for a new climate change policy, or India has become the soft power to bring the highs and low in the emitters. बात करें जो ग्लोबल एमिटर्स हैं, वो मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा कि कौन कौन से ग्लोबल एमिटर्स हैं. इंडिया की जो रैंक है वो 4th है इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल एमिटर. तो अमंग मेजर इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडिया विल मीट द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट बाय 2030. इंडिया हैज़ मेड इट्स कमिटमेंट कि जो पेरिस एग्रीमेंट के जो INDC हैं या फिर जो NDCs हैं इंडिया के स्पेसिफिकली, उनको टारगेट को चेज कर देगी इंडिया 2030 तक. So this is what India has to say from their end, and I personally feel कि India इस टारगेट को बहुत हद तक इस समय से पहले भी अचीव कर सकती है. Now emission arises from the demand. अगर आप emission की बात करेंगे तो emission ऐसा नहीं है कि कुछ अपने आप हो रहा है. Because of the demand in the world, in the urbanized world, it is getting increased. So 2/3 of the emission are arising from the demand of the middle class, such as infrastructure, mobility, buildings, and diet. Right? So these are some of the reasons because of which emission is increasing. And infrastructure worldwide has used a total of material, mainly construction की अगर बात करें, cement and steel, there's no substitute to that, right? और अगर कार्बन स्पेसिस की बात करें, दे आर कंपेरेबल टू द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट है रीच्ड ग्लोबली बाय 2050. सो आने वाले समय में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट हो रही है और सारी इक्विपमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ेगी लोगों को इन टर्म्स ऑफ स्टील एंड अदर वैरायटी सीमेंट्स, सो उस हिसाब से पॉल्यूशन की जो लेवल है वो बढ़ेगी, राइट? सो वी नीड टू कंट्रोल द अदर पार्ट, जैसे इंडस्ट्रीज में जहाँ कंट्रोल कर सकते हैं और जिस एक्टिविटीज़ में कंट्रोल कर सकते हैं, तो बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है. अगर एक तरफ से आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी तरफ से आपको डिक्रीज भी करना पड़ेगा.
नाउ इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इमिटर इवन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। और अगर बात करें तो रिचेस्ट 1% ऑफ द ग्लोबल पॉल्यूशन इमिट मोर देन 2 times ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इमिटेड बाय द बॉटम 50। सिर्फ 1% जो रिच कंट्री की मतलब है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वो इतना इमिट करते हैं जितना कि पूरा 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन इमिट नहीं करती है, राइट। सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज अबाउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर द इंडिया, बिकॉज चाइना, यूके, USA, these are the country, they are among the major emitters, right? और ट्रांसपोर्टेशन इमिशन की बात करें, दैट कॉल फॉर द क्वार्टर ऑफ ग्लोबल इमिशंस। सो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इज समथिंग, इफ इट इज रिड्यूस, अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें या ग्रीन व्हीकल्स यूज करें, मेट्रोज यूज करें, सो द ग्लोबल इमिशन कैन बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन सजेस्ट इन द मेंस एग्जामिनेशन। ना वर्ल्ड एमिटर्स ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो बाय 1950 द कंट्रीब्यूटर ऑफ द यूएस वाज टोटल पीक टू 40%। उसके बाद ये बहुत हद तक कंट्रोल हुई। नाउ अप्रोक्सीमेटली इट हैज डिक्लाइन टू ओनली 26% अगेंस्ट द लार्जेस्ट वर्ल्ड एमिटर्स। और चाइना की बात करें, दिस इज 4 times द पॉपुलेशन ऑफ यूएस एंड इट इमिट्स ओनली 12% ऑफ द क्यूमुलेटिव इमिशंस, राइट। तो आप देख सकते हो अमेरिका की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उनके तरफ जो इमिशन है वो 26% की है। और इन China, being the 4th times the population of the UK, they only emit 12%, right? तो यहाँ पे इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि पेरिस समिट को वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा उनकी खामियां भी ये बात को बताई कि ये डिसीजन वाज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। किस तरह के डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं जहाँ पे ग्लोबल एरिना पे यू हैव टू कंजर्व द एनवायरमेंट। बट अभी फाइनली जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, they have decided, the elect president है Joe Biden, he said that US would be joining the Paris climate change. Now India, with a population close to China, it only has just 3% of the cumulative emissions. तो आप देख सकते हो एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन कम है वो 26% इमिट कर रही है, दूसरी कंट्री इट इज इमिटिंग 12%, that is 4 times more popular than the US. और इंडिया विच इज क्लोज टू चाइना, दे ओनली इमिटिंग 3%। ये परसेंटेज आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप मेंस में क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आंसर्स कर रहे हैं, तो दिस परसेंटेज बिकम वेरी सिग्निफिकेंट। यू हैव टू राइट दिस गिव अ गुड इंप्रेशंस टू द एग्जामिनर। Now coming to the total emitter, अगर आप बात करें, you can see that China is in terms of the total GSEU, these are the part। लेकिन आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखेंगे, ये 2011 की है GTCO2 की, बट अभी यूएस इज ऑन द पीक, यूएस आगे जा चुकी है, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद इंडिया, रशिया फेडरेशन, इंडोनेशिया, ब्राजील, जापान, कनाडा एंड मैक्सिको। सो दीज आर द कंट्री, देयर आर द global top 10 emitters, right? The reference has been taken from the World Resource Institute। टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट पावर जो इंडिया को यूटिलाइज करनी चाहिए, या जो इस एडिटोरियल में बात की गई है, तो सॉफ्ट पावर के तौर पे इंडिया मस्ट हाईलाइट द यूनिक नेशनल सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे मीट इंडस्ट्री की अगर बात करें, स्पेशली बीफ, दैट कॉन्ट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द ग्लोबल इमिशंस। सिर्फ बीफ इंडस्ट्री 1/3 ग्लोबल इमिशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। एंड इंडिया ईट्स जस्ट 4 kg ऑफ मीट अ ईयर। अगर एवरेज निकाली जाए तो एक इंडियन जो है दैट ओनली ईट 4 kg ऑफ मीट, राइट। और वहीं पे अगर आप यूरोपियन यूनियन से कंपेयर करते हैं और अमेरिकन से करेंगे, तो यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं एवरेज 65 kg ऑफ मीट खाते हैं, और अमेरिकन ईट ऑलमोस्ट 100 kg ऑफ ईट ऑन एवरेज। सो यू कैन सी द डिफरेंस। तो इंडिया इज नॉट दैट मच कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट इंडिया अपनी जिम्मेवारी भी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है इन टर्म्स ऑफ द टोटल इमिशंस और उसको कंट्रोल करने में भी। Also, to be noted the fact that the average American household wastes nearly 1/3 of its food, right? और जो अमेरिकन्स है वो अपने 1/3 ऑफ फूड को बहुत ज़्यादा वेस्ट भी करते हैं, एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इकोसिस्टम इससे डिस्टर्ब होती है, या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात करो तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट काफ़ी हाई है। Now coming to the way forward, India has a credible and legitimacy to boost the alternative 250 goals countries currently with the per capita emission below the global average। और for example, the goal ये है कि well being within the ecological limits, जो ecological limits है, जो sustainable framework है, उसके अंदर रहना, ताकि multilateral technology knowledge बरकरार रह सके। And this would be very significant to achieve the sustainable development goal, because every country has to adhere to the sustainable development goal, और हर country ने अपना national determined contribution बनाया हुआ है। उस टारगेट को चेज करना, उस टारगेट को अचीव करना वुड बी समथिंग दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया ने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है कि वो 2030 तक अपने एनडीसी को टारगेट्स को भी पूरे कर पाएंगे। नाउ इन इंडिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से अगर देखा जाए तो इंडिया
अभी 2011 में 2021 में, दिस इज 2021, इंडिया वुड बी स्टार्टिंग इट्स नॉन परमानेंसी फॉर द टेन्योर ऑफ 2 ईयर. तो वहाँ पे इंडिया इस तरह की चीज़ों को पुश कर सकता है कि नेशन कैन गो फॉर द सिविलाइजेशन लॉन्ग स्टैंडिंग अल्टरनेटिव फॉर द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज यूएन इज अ प्लेटफॉर्म वेयर एंटायर नेशन, पूरे वर्ल्ड यूएन की बातों को, उस चीज को तवज्जो देती है. दे हैव अ इंपॉर्टेंस ऑफ द यूएन वर्ड्स. इफ दिस इज इक्वली रिप्रेजेंट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो और सारी कंट्री भी इसको इक्वली इंपॉर्टेंट देंगे, और इंडिया अपने इस टाइम का जो टेनोर है उसको बहुत अच्छा रिप्रेजेंट भी कर सकता है. सो दिस इज अनदर डायमेंशन दैट इंडिया कैन इंक्लूड इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस. नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस, जो कल के सवाल थे उसके मैं आंसर आपको बता दूं. So for the first question, the correct option here is A, that statement 1 is correct. The international creditor is a part of Sasakht plan that approved by the government to adhere the problem and resolving the bad loan. और intercreditor जो agreement होती है that puts the speedy resolution of non-performing assets. Statement 2 की अगर बात करें तो intercreditor agreement aims at resolution for the loan account and rupees 50 and above are under the control of the group, right? So the source of reference here is PIB. Now coming to the second question, the correct option here is A. That statement 1 is correct. The term of the office of the Prime Minister is not fixed and he hold office during the pleasure of the President. And the second statement that the salary and allowances of the Prime Minister are determined by the Parliament from time to time. So the details are taken from Indian Polity by M. Lakshmikant. So coming to the today's MCQs question of the day, the first question that is coming is from Modern India. Consider the following statement. The Brahma Samaj pioneered the cause of widow remarriage, and Pandit Ishwar Chand Vidyasagar proactively participate in it. So which among the two statement is correct? You have to just let us know in the ABCD section. So what do you have to do? You have to just choose the correct option and write the correct option in the comment section down below. Now for the second question from geography, with reference to peaty soil, consider the following statement. The soil are fertile and do not support any vegetative growth. This is the first statement. Now the second statement is they are found only in the heavy area where there is heavy rainfall and humidity. So this is a two statement with regards to the peaty soil that you have to consider, and you have to choose correct option and you have to write that correct option in the comment section down below. If you have any additional information with regards to peaty soil, that also you can share with us in the comment section, right? So do participate, write the question answer, write the correct answers in the comment sections. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptiplex Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.